जो भाजपा के और जो दूसरे दलों की तरफ से जो झूठे प्रचार चलाए गए, उससे भ्रमित मिडिल क्लास को रोकने के लिए और उन्हें एक सच्चाई बताने के लिए इस संगठन की स्थापना करी गई है। देश या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इकोनॉमिक एजेंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सब जानते हैं। इवन छोटा अगर घर भी चलाना होता है तो उसके लिए इकोनॉमिक एजेंडा फिक्स करना होता है। छोटा सा किचन चलाने के लिए भी हमें महीने का एक बजट तैयार करना होता है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 72,000 रुपया पर एनम हर एक भारतीय नागरिक को जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है उसको देने का एक अज़्म किया है, एक वादा किया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये 72,000 रुपये का जो पैकेज है ये कितना सक्सेस होगा, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहाँ हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर जनाब पी चिदम्बरम साहब पहुँच चुके हैं, और इसके अलावा जो है वो शशि थरूर साहब, इसके अलावा सलमान साहब, सलमान सोज एंड कंपनी। तो देखना यह है कि ये जो हमारे कांग्रेस के दिग्गज हैं जो फाइनेंस और इकोनॉमी के ऊपर डिस्कशंस करके एक एजेंडा कांग्रेस को दे चुके हैं, और कांग्रेस इसके लिए जो है वो तत्पर है और वादा वफा करने की उम्मीद पर हिंदुस्तान के जो हमारे वोटर्स हैं वो कितना इस पर भरोसा कर पाएंगे, ये एक सवाल हमारे साथ बना हुआ है। Ms. Anuma Acharya, Amitabh and Rajiv ji to please honor and felicitate Delhi for making this function possible. Thank you, Chidambaram ji, for being here. I know it's an extremely busy day for you, but it is also a very, very important day. The Congress Party released its election manifesto earlier today, and who better to ask about it than the chairman of the manifesto committee. So may I ask you, sir, to first give us some introductory remarks, especially on the economic agenda that we have going forward. The economic agenda is spread over several chapters. You can't only read the section on economic policy. You have to read sections on jobs, industry, infrastructure, informal and unorganized sector, agriculture, taxation, banking. So it's spread over several sections. But the underlying theme is that we carry forward liberalization for greater freedom. In the section on economic policy, we've spelled out our approach. If you will read that section carefully, you'll find that we say the drivers of growth are private investment, government expenditure, domestic consumption and exports. And we have spelled out what we will do in each one of these sectors. We have emphasized the place of foreign direct investment. We have promised to review all laws, rules and regulations which in my view have insidiously brought back a control regime. We have said the foreign trade policy will follow the universally accepted dictum that exports and imports should be free and compatible with WTO rules. We said we will make a law on doing business. Because ease of doing business is a myth. We do a survey in 2 cities
and you show marginal improvements in two parameters, one getting an electricity connection and one getting a building permit, and then say India jumped X ranks in ease of doing business. We need in this country to have a law on doing business. Because government, especially the bureaucracy, thinks that the bureaucracy knows how to do business and businessmen do not know how to do business. It's only somebody who's actually staked his money, who's put his money at risk, knows how to do business. I have not come across a civil servant who's ever staked 1 rupee in a business. But yet, they will tell you how to run steel, how to run telecom, how to run petroleum, how to build roads. हम जानते हैं कि कांग्रेस का जो है वो मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन था और आज का दिन जो है वो कांग्रेस और देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन इस बीच में हम ये देखते हैं कि दिल्ली में क्या और कार्यक्रम चल रहे हैं। आज हम हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और यहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की तरफ से। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस दिल्ली स्टेट यानी दिल्ली चैप्टर के सेक्रेटरी जनाब ओवैस खान साहब। हम बात करेंगे इनसे कि आज के एजेंडे पे कितना मुल्क का मुस्तकबिल टिकता है। वैसे आपका खैर बख्त। आज हमारे पूर्व वित्त मंत्री माननीय पी चिदम्बरम साहब इकोनॉमिक एजेंडा पर डिस्कस करने के लिए ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के मंच पर आए हैं। जो दिन में कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो बात हुई हैं, चाहे वो मिनिमम इनकम गारंटी की हो या रोज़गार की हो या जो भी बातें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हैं, वो किस तरह वो एग्जीक्यूट की जाएंगी, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगा सरकार आने पर, यही सब बताने के लिए आज माननीय चिदम्बरम जी यहाँ पर आए हैं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस कैसे एसोसिएट करता है मेन बॉडी के साथ कांग्रेस की, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस 2017 में माननीय राहुल गांधी जी ने डॉक्टर शशि थरूर साहब की लीडरशिप में स्थापना इसकी की संगठन की, जिसमें एक कांग्रेस पार्टी का एक नज़रिया है, एक मानना है कि जो भी समाज का पढ़ा लिखा तबका है, जो प्रोफेशनल्स हैं, और उन सबको एक छत के अंदर लाने के लिए ये संगठन की स्थापना की गई। और सबसे बड़ी परेशानी ये रही हिंदुस्तान में कि कांग्रेस पार्टी ने विकास के अनेकों कार्य किए, बार बार, जैसे सन 91 की अगर आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करें या जीएसटी का ढांचा तैयार करने की बात करें या फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करें या इंस्पेक्टर राज हटाने की बात करें, ये सब अनेकों कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और आज़ादी के बाद से पूरे हिंदुस्तान को खड़ा किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास पिछले 4-5 वर्षों में भ्रमित हो गया था और जो भाजपा के और जो दूसरे दलों की तरफ से जो झूठे प्रचार चलाए गए, उससे भ्रमित मिडिल क्लास को रोकने के लिए और उन्हें एक सच्चाई बताने के लिए इस संगठन की स्थापना करी गई है, जो कि पढ़े लिखे लोगों में, प्रोफेशनल्स में जाके एक सही बात और कांग्रेस पार्टी का एक सही रुख स्पष्ट कर सकें। आपको क्या लगता है कि जो 72,000 पर एनम जो है वो एक आम आदमी को हिंदुस्तान के देने की बात की गई है और मैनिफेस्टो में वो शामिल किया गया है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ऑल इंडिया कांग्रेस में? नहीं, इसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हमने पास में भी देखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं। अभी आप बीते दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, जो किसान माफ़ी का उन्होंने वादा किया था, उस पर भी बहुत सवाल उठे थे कि किसान माफ़ी, कर्ज माफ़ी कैसे होगी, लेकिन वो कर्ज माफ़ी उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर करके दिखाई है। और इस मिनिमम इनकम गारंटी का पूरा रोड मैप तैयार है, जो चिदम्बरम जी ने बताया है आज भी और अभी भी उसकी चर्चा वो यहाँ पर करने आए हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत आने जा रही है। तो हम एक खुशखबरी लेकर अपने देशवासियों के लिए हैं कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनती है, हमें नहीं पता बनती है नहीं बनती, ना हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, हमें देखना होगा कि वो बनती है अगर, ऐसी आशा के साथ तो हम ये उम्मीद दिलाते हैं ऐसे लोगों को जिनकी इनकम 5,000 से कम है, वो देश में 6,000 रुपये महीना की एक इस स्कीम के तहत, यानी जो मिनिमम इनकम प्रोग्राम जो बनाया गया है 72,000 रुपया पर एनम का, उसके लिए हम देशवासियों को ये खुशखबरी देना चाहते थे और हम आशा करते हैं कि शायद कांग्रेस का ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो और देश के वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं वो राहत की सांस लें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे थे कि हम इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हैं दिल्ली में, और आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उस संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया है जो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस की तरफ से है। ये ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को कहीं ना कहीं सहयोग देती है। देखना ये होगा कि ये जो प्रोग्राम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है 72,000 रुपये का, यानी एक पैकेज देने की बात की गई है, इस संबंध में फर्दर कुछ डिस्कशंस पी चिदम्बरम साहब और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, जिसमें शशि थरूर साहब वगैरह के आने की भी उम्मीद है और सलमान सोज साहब वगैरह यहाँ मौजूद हैं।
हम ये इस आशा और उम्मीद के साथ यहाँ मौजूद हैं कि कांग्रेस अगर पावर में आती है तो ज़रूर देश की उस सेगमेंट के लिए, उस वर्ग के लिए एक अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ मैं अली आदिल खान, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।